کراچی شہر معاشی طور پر پورے ملک کو چلاتا ہے اور اسی شہر کو بد انتظامی کی وجہ سے متعدد مسائل درپیش ہیں۔ کبھی کسی حکومت نے کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی۔ بلدیاتی انتخابی نظام کے تحت کراچی کی خود مختاری ضروری ہے۔ اگلے مہینے K4 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ٹیکنالوجی کا استعمال ضرورت بن چکا ہے۔ الیکٹرانک بینکنگ کے باعث روایتی بینکنگ میں بھی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ نادرا ایسا نظام بھی متعارف کرائے جس سے آڈٹ کا موجودہ نظام مزید مؤثر ہو سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اسلام آباد میں پینشنرز کی بائیو میٹرک تصدیق سروس کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن۔ مقصد حقوق کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور زبان تسلیم کرنا، انسانی حقوق کی پامالی کو روکنا، خواتین اور بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن اور سب سے بڑی جمہوریت کہلانے کا جھوٹا دعوے دار بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں موجود نہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ۔ موسم کی شدت اور کمزور معاشی حالات کی وجہ سے افغان عوام نئے انسانی المیے کے دہانے پر۔ افغانستان کو اس وقت شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ توجہ نہ دی گئی تو یہ بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی امور دفتر کے سربراہ رامز الکابروف کا افغان ٹی وی کو انٹرویو۔ 10 دسمبر 1971 کو وطن عزیز کے دفاع اور دشمن کی تباہی میں اہم کردار ادا کرنے والے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت۔ گجرخان کے علاقے جاتلی میں شہید کی آخری آرام گاہ پر جنرل آفیسر کمانڈنگ 23 ڈویژن اور شہید کے ورثاء کی جانب سے پھولوں کی چادر اور فاتحہ خوانی۔ اور پلاسٹک ویسٹ کی ری سائیکلنگ کے لیے 2 مشینیں بنانے والے نوجوانوں، پہاڑوں کے عالمی دن اور پاکستان میں یورپین فلم فیسٹیول کے حوالے سے رپورٹ بھی کیبنٹ اور کا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ اور میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ Today, we celebrate International Mountain Day on the theme of sustainable tourism. I'd like to highlight the great mountains. But more importantly, I would like to support and empower communities and one way of doing this is through ecotourism. Climate change, you need to mobilize the political will to combat. You need to combat climate change and also to address other environmental challenges and to become one sustainable development. وہ خاک تیرے ذرہ آفتاب
میں فراہم کرنے کے لیے گرین لائن بس سندھ کی عوام کے لیے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. بڑے شہروں کی بنیادی کردار انجن آف گروتھ ہے. کراچی جاتا ہے. نیو یارک فرانس پہ امپیکٹ. اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان وزیراعظم عمران خان شہریوں کو پانی کی فراہمی کے بڑے منصوبے ماہ رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 2023 کراچی کو پیپلز آپ کراچی کا حق جو کراچی کی پلان کا شرف کیا ہوئی دسمبر کے دن جو ہے کمرشل آپریشن تعالیٰ اگلے ہمارے منصوبے کے بعد اب پیپلز پارٹی والے بھی لائیں. کہ 200 تیار ہے. اور کرنے بھی نہیں دیتے. عمران خان سروس کا افتتاح کر دیا ہے. اور آرام دہ بسوں پر سفر کر سکیں گے. اسی حوالے میگا سٹی کراچی میں دلچسپی کی حل ہوتا دکھائی دے رہا. وزیر اعظم لائن بس سروس کا افتتاح کر دیا. سندھ میں عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت فراہم کرنے میں ناکام رہی. سفر کے لیے لوگ بس سروس کا منصوبہ
इब्तदाई आइश तक बसें चलाई जाएंगी, जबकि बाद में इसे टावर तक वसअत दी जाएगी। इस रूट पर हर किलोमीटर के बाद एक बस स्टेशन कायम किया गया है और मजमूई तौर पर 22 स्टेशन तामीर किए गए हैं। चीन से दरामद की गई बसों में खवातीन और मर्दों के लिए अलग दाखिली दरवाजों के अलावा फैमिलीज के लिए भी अलग दरवाजा रखा गया है। बस में मुसाफिरों को नशिस्त पर मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलत हासिल है। इन एयर कंडीशन बसों की CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग के जरिए किराया वसूल किया जाएगा, जबकि हर स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए इंतजार गाह भी तामीर की गई हैं। बसों में 40 मुसाफिरों के बैठने की जगह है। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज से शहर में ट्रैफिक के दबाव में कमी के साथ अवाम सुख का सांस भी लेंगे। उधर तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है, जिसपे ये दिखाया गया है कि ग्रीन लाइन BRT का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करेगा। अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा कि कराची में 21वीं सदी की ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं। ये एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां से ग्रीन लाइन को मॉनिटर किया जाएगा। ये सिर्फ ना ग्रीन लाइन के लिए है बल्कि आने वाली तमाम BRT लाइंस को अकोमोडेट करेगी। इधर कमांड एंड कंट्रोल से हम पैसेंजर की मूवमेंट, बसों की मूवमेंट, बसों की टाइमिंग्स, पैसेंजर की मूवमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, AFC ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, तमाम इस बिग स्क्रीन पे से देख के मॉनिटर कर सकेंगे। इधर से हम कंट्रोल भी कर सकेंगे, कमांड भी दे सकेंगे अपने हर IT रूम को जो कि प्रेजेंट है ईच स्टेशन पे। इसके अलावा दूसरी जो वॉल है उधर से हम लोग कैमरास के थ्रू सर्वेलेंस कर सकेंगे कॉरिडोर की और स्टेशंस की। ये फैसिलिटी आने वाली जदीद ट्रांसपोर्ट की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में सनत और तिजारत पर तवज्जो नहीं दी गई। हम बरामदात बढ़ाने और सनत को तरक्की देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल के PVC 3 यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुल्क की सनत पर तवज्जो नहीं दी जाती तो मुआशी मसाइल पैदा होते हैं और फिर हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होता। वज़ीर आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत इंडस्ट्रीज़ और कारोबार के लिए रुकावटें ख़त्म करके आसानियाँ पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें मज़ीद वुसअत देने के लिए हम CPEC के दूसरे मरहले में भी चीन से मदद ले रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए एंग्रो कॉरपोरेशन के सदर गयास खान ने कहा कि 70% PVC कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। पिछले 3 साल में कंपनी ने दिन रात मेहनत करके ये यूनिट लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान साल में $170 मिलियन PVC इंपोर्ट करता है, जो कि अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तैयार की जाएगी। इससे पहले गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा और एंग्रो कॉरपोरेशन के आला हुक्काम के हमरा यूनिट का इफ्तिताह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तरक्की तेल और कुदरती वसाइल की बजाय जहनी सलाहियत को निखारने से होगी। हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को अपनाना होगा। इस्लामाबाद में पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक सर्विस के इजरा की तकरीब से उन्होंने खिताब किया और इस खिताब में उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वक्त का तकाजा है। मौजूदा ज़माने में हमें फैसले जल्द करना होंगे। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जरूरत बन चुकी है। रोजमर्रा मामलात में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बायस रिवायती बैंकिंग में भी नुमायां तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने जोर दिया कि नादरा ऐसा निजाम भी मुतारिफ कराए जिससे ऑडिट का मौजूदा निजाम मजीद मौसर हो सके। आज भी फॉल्स आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी की चोरी दुनिया के अंदर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आसानी पैदा करता है कि उसको अपने साथ इस्तेमाल ना करना बड़ी जाती है। नादरा ने फिंगरप्रिंट की बुनियाद पर ही आइडेंटिटी क्रिएशन भी कर रहे हैं विदाउट अ पर्सन विजिटिंग द नादरा ऑफिस। ID कार्ड बाहर के मुल्कों में कोई पाकिस्तानी हो जो 18 साल का हुआ हो तो उसको बगैर एम्बेसी जाए हुए
या किसी जगह बगैर जाए हुए आइडेंटिटी की एक क्रिएट करा रहे हैं। एक चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी की सबसे बड़ी चीज है, विच प्रोबेबली कवर्स 80 to 90% ऑफ द डेवलपमेंट, एआई पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो फेशियल रिकग्निशन तो अब बड़ी उरूज पर पहुंच गई। तकरीब से खिताब में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल और दूसरे मुकर्रीन ने AGPR की जानिब से पेंशनर्स के लिए तैयार करदा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विसेज के खदोखाल पर रोशनी डाली। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में हर महीने 60 अरब रुपए 14 लाख पेंशनर्स अकाउंट्स में भेज दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी की जदीद दौर में पेंशनर्स की सहूलत के लिए इन सर्विसेज के इजरा से पेंशनर्स को हर साल मार्च और सितंबर में बैंक ब्रांच का चक्कर लगाने और प्रूफ सर्टिफिकेट्स की फराहमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सर्विस को नादरा से मुंसलिक करने के बायस पेंशनर्स अब लाइफ सर्टिफिकेट्स दे सकेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इससे पहले पेंशनर्स के लिए तैयार करदा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। निज़ाम को IT पर मुंतकिल करने और मजमूई तौर पर डिजिटलाइजेशन करने से आसानियां पैदा होंगी और शफाफियत को फरोग हासिल होगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा, तादाद 37 लाख से तजावुज कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरियों के इंदराज से मुतालिक माहाना अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा है कि पंजाब से 22 लाख, खैबर पख्तूनख्वा से 6 लाख और सिंध से 5 लाख शहरी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक बलूचिस्तान से 51,000 जबकि विफाक से 77,000 शहरी रजिस्टर हुए। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 44 लाख शिकायत भी दर्ज हुई, जिनमें से 42 लाख पाकिस्तान से जबकि 2,15,000 समंदर पार पाकिस्तानियों से मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अब तक 40 लाख शिकायत निपटा दी गई हैं। 46% शहरियों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हुकूक को बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहब और ज़बान तस्लीम करना, इंसानी हुकूक की पामाली रोकना, ख़वातीन और बच्चों को उनके हुकूक के बारे में आगाही फ्राहम करना है। इस साल ख़ास तौर पर मसावात, अदम मसावात और इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखकर यह दिन मनाया जा रहा है। इस्लाम भी मसावात का दर्स देता है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मजहबी आज़ादी हासिल है और शहरी हुकूक भी सबके लिए यकसां हैं। मरियम मलिक की रिपोर्ट। ये दिन 10 दिसंबर 1948 से मनाया जा रहा है। अमन, तरक्की और इंसानी हकूक से मुतालिक आगाही इस दिन का खासा है। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मिजारी पाकिस्तान में कमजोर तबके के इंसानी हकूक पर काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत ने इंसानी हकूक को एजेंडा के सबसे ऊपर रखा है। खवातीन हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक पे हमने फोकस किया है ताकि उनके खिलाफ जो तशद्दुद होता है वो ख़त्म हो। कमजोर तबके, खवातीन, बच्चे, ख्वाजा सिरा और अक़लियती बरादरी पर जोर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ तशद्दुद को कम किया जा सके। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इंसानी हकूक को सरे फहरिस्त रखे हुए है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक कहती हैं, हमने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से कानून बनाए हैं। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद उसको रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट का कानून बनाया है, ज़ैनब अथॉरिटी बनाई है कि वो इस कानून को ऑपरेशनलाइज करे, ऐप बना है और उसके साथ साथ हमने बच्चों की डोमेस्टिक लेबर प्रिस्क्राइब कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। इंसानी हकूक की पामालियों का सबसे बड़ा सिलसिला फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी है। कश्मीरी इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में काबिज भारतीय अफवाज के गैर इंसानी सलूक पर डोजियर पेश कर चुका है। गुज़िश्ता चंद माह से कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में कई गुना इजाफा हुआ है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि दुनिया समेत पाकिस्तान में आज भी इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जो है बुनियादी तौर पर मुआशरे में मसावात का फ़रोग है। बिल्कुल, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक साहिबा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा कशमाला तारिक साहिबा, ये बताइएगा कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम अगर ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करें और पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान के माशरे की बात करें, आप क्या समझती हैं किस हद तक मुसावी हुकूक हासिल हैं यहाँ पर ख़वातीन को?
دیکھیں جی ابھی ہمیں وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. جدوجہد جو ہے وہ ہمیں مزید کرنی پڑے گی, سب کو مل کے اور کرتی رہنی چاہیے میں سمجھتی ہوں. لیکن قوانین بن رہے ہیں, ادارے بن رہے ہیں, بنے ہوئے بھی ہیں. اب ہمیں آگہی دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ آ کے اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں. جیسے ابھی جو نیا قانون آیا ہے 2020 میں, جس میں کہ خواتین کو ان کی پراپرٹی رائٹس بڑی آسانی سے 2 مہینے میں مل جاتے ہیں اگر ان کو ڈپرائیو کیا ہو کسی نے, ان کے بھائیوں نے یا سسرال والوں نے یا کسی قبضہ مافیا نے. تو اس قانون کے تحت ان کی دیکھیں کتنی اکنامک امپاورمنٹ ہے کہ جہاں سے ان کو ان کا حق نہیں مل سکتا, یہ ادارہ بغیر فیس کے بغیر وکیل کے ان کو ان کا حق دلاتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح کام کی جگہ پہ حراسیت کے قوانین جو ہیں وہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہیں کہ وہ اپنا حق لے سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ دے آر ایکول سٹیزنز اور ہمیں ایکول اپرچونٹیز چاہیے. تو اگر وہ ہراساں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہاں جانا ہے, ان کو ابھی بھی یہ بات نہیں پتا. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وفاقی محتسب آنا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام عدالتوں کی طرح ہیں, وکیل کریں گے پھر ہم ذلیل ہوں گے, سالہ سال مقدمے چلیں گے. تو ہمیں ان کو یہ آگہی دینی ہے کہ قوانین بھی آ گئے ہیں, ادارے بھی آ گئے ہیں, آپ اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھائیے. اب آپ گھبرائیں نہیں, اور جو لوگ کیا کہیں گے کہ تانے ہیں اس سے باہر نکلیں. اب ہماری خواتین جو پڑھی لکھی ہیں, جو بچیاں پڑھ رہی ہیں, دے آر دا چینج, دے آر دا ونڈز آف چینج. آپ دیکھیں آج کیسز کی ریشو بڑھ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں دوسرے تناظر میں تو خواتین جو ہیں وہ جب ٹالریٹ کیوں نہیں کرتی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکنامکلی خود برداشت کر سکتی ہیں. تو میرا کہنے کا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں اور تقویت دینی ہے, اس پیغام کو پھیلانا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے, ان کو اتنا کانفیڈنس دینا ہے کہ اٹھو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اب اس میں ان کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ کے فون میں جو میسیجز آتے ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں, ہم بتاتے ہیں. آپ کی کوئی ریکارڈنگ ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں, کوئی تصاویر ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں تو وہ کریں. لیکن ہمارے پاس آج خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کسی قسم کے ذہنی دباؤ ہے, کسی قسم کی ہراسانی سے اپنے آپ کو پریشان مت کریں, بیکاز جو آپ کے حقوق ہیں ان کو جانیے. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ جدوجہد اکیلے ایک بندے کی نہیں, ہمیں ٹیم کی طرح کام کرنا ہے, چاہے وہ پی ٹی وی ہے, چاہے وہ پیمرا ہے, میڈیا ہے. آپ اپنا یہ پبلک سروسز میسیجز چلائیے, جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس پیغام کو عام کیجیے, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں گے جب دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ ادارہ ہے اور یہاں پر پہنچے, اور یہ آپ کا حق ہے. نہ کوئی آپ پہ احسان کر رہا ہے, نہ کوئی آپ سے ادھر فیس لے رہا ہے, آپ اور کچھ نہیں. تو مشورہ کرنے کے لیے بھی فون کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ہیئر. تو یہی بات ہے. صاحبہ یہ فرمائیے گا, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر اشارہ فرمایا کہ آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے اگر جدید شہروں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری یقیناً بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اس حوالے سے آگاہ تو ہیں, لیکن یہاں جو سب سے زیادہ انسانی حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے رورل ایریاز کے اندر, ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر, کیونکہ وہاں خواتین بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں. ان علاقوں کے اندر آگاہی پیدا کرنے کے لیے کیا حکومتی سطح پر آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, یا پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کچھ ایسے پروجیکٹ لایا جائے کہ ان خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جا سکے؟ دیکھیں جی, پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یا حکومتی ادارے ہوں, میں سمجھتی ہوں اس سوسائٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے, پاکستانی شہریت ہونے کی وجہ سے سب کو چاہیے اس کا جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کرے. اور دیکھیں جب ہم موبائل فونز کی بات کرتے ہیں, نئے گیجٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہر کسی کے پاس نہیں ہے, ہر کسی کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہے, لیکن ٹی وی ہر کسی کے گھر میں ہے. آپ کا ٹی وی جو پیغام پہنچا سکتا ہے, میں سمجھتی ہوں وہ کوئی اور چیز, کوئی این جی او, کوئی ادارہ نہیں پہنچا سکتا ویسے, کیونکہ صبح مارننگ شوز بھی عورتیں دیکھتی ہیں, شام کو جو مرد بیٹھ کے پولیٹیکل شوز دیکھتے ہیں اس میں بھی وقفے آتے ہیں اور اس میں آپ پیغام چلا سکتے ہیں. تو ان مائی اوپینین اینڈ مائی ایکسپیرینس 20 سال سیاست کے اندر اور ادھر کام کر کے, میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں جو رول میڈیا پلے کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اینڈ آلسو الیکٹرانک میڈیا, کیونکہ ہر کوئی انسٹاگرام, ہر کوئی فیس بک اور اس کے اوپر نہیں ہے. ہاں بہت بڑا ہمارا سیگمنٹ ہے, لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں.
اب جو کم تعلیم یافتہ ہے وہ ٹی وی تو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے نا جی شام کو یا صبح کو, تو اس کو یہ اویئرنیس دینی کہ بھائی آپ کا حق ہے, آپ کے بھائی اگر آپ کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے والد کی چھوڑی ہوئی, تو آپ محتسب کے پاس آئیں, یا آپ فیڈرل محتسب کے پاس آئیں یا آپ صوبائی محتسب کے پاس جائیں. محتسبین کا ادارہ اتنا کوئک انصاف دیتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سالہ سال وہ دیوانہ جو ہے دیوانی مقدمہ دیوانہ کر دیتی ہے, ایسا کوئی حساب ہی نہیں ہے. 2 سے 4 مہینے کے اندر آپ اپنی پراپرٹی کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, نہیں ہو تو ہم اس پراپرٹی کی آکشن کرا کے جس کا جتنا حصہ ہے اتنا دے دیتے ہیں. یہ قانون پنجاب, فیڈرل کیپٹل اسلام آباد اور اس وقت کے پی میں نافذ ہے, ابھی بلوچستان اور سندھ پیچھے ہیں. دوسری بات جو آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس بل ہی نہیں پاس ہوا ہوا. آپ کی نیشنل اسمبلی ابھی تک قاصر ہے اس سے کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس بل کلیئر کرا لیں کہ جو خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف نہ حکومت کا کام ہوتا ہے نہ خالی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. جب عورتوں کی باری آئے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. ہمیں کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو, کوئی پارٹی ہو, تہیہ کرنا چاہیے کہ ہاں جہاں پہ عورتوں کی بہتری کی بات آئے, بچوں کی بہتری کی بات آئے, ہمیں کراس پارٹی کھڑے ہو کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ گاؤں کی بات کر رہے ہیں, جو آپ چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں ایک سیمینار کرنے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں, 400-500 لوگ ہوتے ہیں. جب آپ ٹی وی پہ وہ ایک چیز چلاتے ہیں دن میں 4 دفعہ, تو آپ سوچیں کہ آپ کی آؤٹ ریچ کتنی ہے ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ. آؤٹ ریچ کو بھی یقیناً بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا کشمالہ صاحبہ, آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمیں آگاہی دینے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ اگر کہیں پر کسی خاتون کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر حقوق کے حوالے سے وائلیشنز ہوتی ہیں, کس طرح سے اپروچ کریں گی وہ محتسب کو, چاہے وفاقی محتسب ہو یا صوبائی محتسب ہو, وہاں تک اپنی آواز کو پہنچائیں گی کیسے؟ کیا کوئی شکایت سیل ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں وہ فوری طور پر اگر وہ جا نہیں سکتی تو رابطہ کس طریقے سے کریں گی؟ اچھا جی, ہماری دیکھیں فوسپا SOSPAH فیڈرل اومبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں. کیونکہ کام کی جگہ پہ ہراسانی کی بات ہے تو اتنا وہ تمام خواتین پڑھی ہوئی ہوتی ہیں جو دفاتر میں جاتی ہیں کہ وہ ویب سائٹ کھول سکتی ہیں اور وہ فوسپا پہ آن لائن کمپلین کر سکتی ہیں. پھر ہماری اس پہ ساری ہیلپ لائنس لکھی ہوئی ہیں جی. پھر ہمارے ریجنل آفیسز ہیں, اور جو خواتین نہیں آ سکتی وہ ہم ویڈیو کال پہ ان کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے, کرایہ نہ کرنا پڑے, بچے چھوڑ کے نہ آنا پڑے. تو ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دوسری چیز جی, فوسپا کو جو لوگ فون آپریٹ کرنا جانتے ہیں وہ ہمیں انسٹاگرام یا فیس بک پہ دیکھیں یا ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ان کو ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی پتہ چلے گی کہ کیسے کمپلینٹ رجسٹر کرنی ہے. 2 مہینے کے اندر ہم فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو ایویڈنس یا وٹنس ساتھ لے کر آنا ہوتا ہے. کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کا 1 روپیہ ڈھیلا نہیں خرچ آتا اس کے اندر. آپ صرف ایک دفعہ فوسپا کو ٹرائی کیجئے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کی سزائیں میں آپ کو بتاؤں. سزا جو دوسری سائڈ ہے, جب پروو ہو جاتی ہے ہیرسمنٹ, ہم نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کی تنخواہ بند کر سکتے ہیں, ان کو ہم ڈیموٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے کیا ہے بہت 100 کی تعداد میں. اس وقت کوئی 4000 کیسز میں نپٹا چکی ہوں جی, اور اس کے اندر ہم نے سب کو سزا دی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے جن لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے شکایت کی تو ہماری جاب چلی جائے گی, ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے بعد میں ان کا فالو اپ رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی وکٹمائز تو نہیں کر رہا. تمام باتوں کا فالو اپ رکھا جاتا ہے. یقینی طور پر وفاقی محتسب کا کردار اس حوالے سے بڑا اہم ہے. بہت بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے, کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کا آئین اور قوانین ہر پاکستانی کو سلامتی، ووٹ، مذہبی آزادی، معلومات تک رسائی اور وراثت کا حق دیتے ہیں.
इन हुकूक के अलावा खुसूसी तौर पर ख़वातीन ख्वाजा सराओं के हुकूक की फराहमी के साथ साथ कम उम्र बच्चों को मुफ्त तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बदसलूकी से बचाव का हक जैसे बुनियादी और मुसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी की ज़मानत देते हैं। इन हुकूक की किसी भी तरह से पामाली एक जुर्म है। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शिकार है तो फ़ौरन वजारत इंसानी हुकूक की कौमी हेल्पलाइन 1099 पर मुफ्त कॉल करें। अपने हुकूक पहचानिए, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ये पैगाम इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर वजारत इंसानी हुकूक इस्लामाबाद की जानिब से मफाद आमा के लिए नशर किया गया है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और नाजरीन बात कर रहे हैं कुछ आज के आलमी दिन के हवाले से। आज जब दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज इंसानी हुकूक की आलमी एलामिया की मुसलसल धज्जियाँ उड़ा रही हैं। खिलाफ वर्जियों का सिलसिला वहाँ पर जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक के आलमी एलामिया में दर्ज 30 बुनियादी इंसानी हुकूक में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया जा रहा और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कोई एक भी मौजूद नहीं। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में जनवरी 1989 से लेकर अब तक 95,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है। भारतीय फोर्सेस की तरफ से चलाए गए पैलेट छर्रों से हज़ारों कश्मीरी जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों पैलेट लगने से मुकम्मल तौर पर अपनी बसारत से महरूम हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम नाजिया बात करें तो भारतीय फौजियों ने रवां बरस कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई और 12 के लगभग खवातीन समेत 484 कश्मीरी ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया है। 1048 घर और दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि 118 खवातीन की बेहुरमती भी की गई है। और इंसानी हुकूक के कारकुन खुरम परवेज, सहाफ़ियों, मोहम्मद खवातीन और लड़कों समेत 17,000 से ज़ायद अफराद को काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि काबिज भारतीय हुकाम ने रवां बरस श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद समेत कई बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी और इसी अरसे के दौरान मुहर्रम और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस जैसे मजहबी इज्तिमात के इनेकाद से भी कश्मीरियों को रोक दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि काबिज इंतजामिया ने हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक को 5 अगस्त 2019 से घर में नज़रबंद कर रखा है और अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी आगे आए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करवाए और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत देने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। नाज़रीन, एक तरफ इंसानी हुकूक का आलमी दिन और सबसे बड़े जमहूरियत कहलाने का झूठा दावेदार भारत मकबूजा कश्मीर में जामे मनसूबाबंदी के तहत कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। मकबूजा कश्मीर के हालात की अक्कासी की है हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान ने। इंसानी हुकूक की फराहमी, इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद से पाक मुआशरा नू इंसानी की बुनियादी तमद्दनी ज़रूरत है। इंसानी मुआशरे की सबसे बुनियादी ज़रूरत अमन इंसाफ और मसावात है। दुनिया में अब अमन पसंदी का प्रचार किया जा रहा है। बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद अब ये उम्मीद जाग उठी थी कि आलमी अमन के साथ साथ जुल्म इस्तबदाद का शिकार रहने वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे, मगर कश्मीर जहाँ भारत ने गैर कानूनी तसल्लुत जमा रखा है, जिसके इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों की अलमनाक दास्तान गवाह है कि अब भी कुछ कौमें इंसान को उसका जायज़ मकाम देने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता 73 बरस से यहाँ भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ हैं। ये जेनोसाइड इसलिए हो रहा है मकबूजा कश्मीर में कि हिंदुस्तान जो है वो उस इलाके की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है, उसको मुस्लिम जो मेजॉरिटी स्टेट से जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट बनाकर जो है वहाँ के लोगों की जो ख्वाहिश है हिंदुस्तान से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनने की, उसको जो है ताकि इस तरह वो दबा सके, ख़त्म कर सके। गुज़श्ता 30 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पर शहीद किया गया कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे थे, वो हक खुद इरादत मांग रहे थे और जिसकी तौसीक और तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा ने की है। कश्मीरियों की नस्ल कुशी का ये सिलसिला नया नहीं। 1931 के अवाइल में सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर यकमुश्त 22 निहत्ते बेगुनाह मुसलमानों पर गोलियों की बौछार करके इन्हें शहीद किया जाता है, तो दूसरी जानब 1947 में पाकिस्तान ले जाने के बहाने 2.5 लाख से ज़ायद मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है। 3 नस्लें फसले आज़ादी की आबियारी अपने लहू से कर चुकी हैं,
मगर कश्मीरी अज़्म व हिम्मत और जवां मर्दी के साथ अब भी बातल के सामने सीना सपर हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए, जबकि इसके बरक्स भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। पूरी दुनिया इस दिन हर साल डेकेड से ये प्लेज करती है, अहद करती है कि इंसानियत एक है, हर इंसान को एक्सेप्ट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, नेशन, और उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। मगर क्या वजह, आज मैं दुनिया से पूछती हूँ, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन से जो ये दिन मनाते हैं, कि क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मेरिट है कि इंडिया अभी तक मेंबर नेशन है यूनाइटेड नेशंस का। इसको रिमूव क्यों नहीं किया जाता, इसको काउंटेबल क्यों नहीं किया जाता, इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती। ये बदतरीन वायलेशन कर रहा है इंसानियत की, ये जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है। 70 सालों से कश्मीरियों की लाशें, बॉडी बैग्स मिलते हैं। कश्मीरियों के पास कोई सिविल राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है, रिलीजियस राइट्स नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग कश्मीरी जो है मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, और उनके कब्रिस्तान बढ़ते रहेंगे। भारत में अमीरों और गरीबों के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है। भारत की निस्फ से ज़ायद दौलत के मालिक 10% अमीर लोग हैं, जबकि निस्फ आबादी के पास सिर्फ 13% दौलत है। आलमी सतह पर अदम मसावात से मुतालिक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अमीर तरीन अफराद ने रवां बरस अपनी दौलत में तारीखी इजाफा किया है और 57% कौमी दौलत पर सिर्फ 10% अमीर तरीन अफराद का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर और गरीब तबके के दरमियान दौलत के तनासुब में काफ़ी फ़र्क पैदा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की वजह मोदी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं। गरीबों की फलाह बहबूद के इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं, हर शोबे की निजकारी की जा रही है और अदम मसावात बढ़ रही है। गरीब गरीब तर, जबकि मालदार मजीद अमीर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, जहां मौसम की शिद्दत और कमज़ोर मुआशी हालात की वजह से अफगान अवाम नए इंसानी अलमिये के दहाने पर हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर दफ्तर के सरबराह रामिस अल-कबारोफ ने कहा है कि अफगानिस्तान को इस वक्त शदीद तरीन इंसानी बहरान का सामना है और इससे निमटने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत है। सूरत हाल पर तवज्जो ना दी गई तो ये बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। अफगान TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुसलसल 4 साल से अफगान अवाम खुश्क साली का शिकार है। मुंजमद असासों की बहाली सूरत हाल पर काबू पाने में मुआविन होगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ कामिलोफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। मुंजमद असासों को बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। और एक भी टैंक बचने ना पाए, सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत है। 10 दिसंबर 1971 को वतन अजीज के बहादुर सपूत ने दुश्मन की तबाही में अहम किरदार अदा किया। कौम के इस बहादुर बेटे के हवाले से देखिए इस्लामाबाद से आसिम रिजवान की ये खुसूसी रिपोर्ट। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। निखा कलां तहसील पिंड दादन खान जिला जेलम से ताल्लुक रखने वाले सवार मोहम्मद हुसैन ने 1949 को रोज अली के घर जन्म लिया। 13 अक्टूबर 1963 को सवार मोहम्मद हुसैन ने 20 लांसर्स में अस्करी खिदमात का आगाज किया। उन्होंने 1971 की जंग में बतौर असला बरदार ट्रक ड्राइवर शकरगढ़ सेक्टर में नुमाया किरदार अदा किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर सवार मोहम्मद हुसैन एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाते रहे। वो कई बार लड़ाका गश्त की कार्रवाइयों में भी रजाकाराना तौर पर शामिल हुए। 7 दिसंबर को ऐसी ही एक लड़ाका गश्त के दौरान सवार मोहम्मद हुसैन ने अपने 3 साथियों के हमरा दुश्मन को गदरपुर गाँव से भगाया। उन्होंने गजगाल गांव की जानिब दुश्मन की पेशकदमी से मुतालिक अहम मालूमात भी अपनी बटालियन हेडक्वार्टर्स को फराहम की। सवार मोहम्मद हुसैन ने 9 दिसंबर को इंतहाई कामयाबी से दुश्मन के एक आर्टिलरी ऑब्जर्वर की निशानदेही की और उसे मार भगाया। 10 दिसंबर को भी वतन अजीज का यह बहादुर सपूत हिंदुस्तानी टैंकों की निशानदेही और उन पर फायर कराने में अहम किरदार अदा करता रहा। आपकी दुरुस्त निशानदेही के नतीजे में दुश्मन के 16 टैंक तबाह हुए। इस दौरान वतन का यह बहादुर बेटा
दुश्मन के टैंक पर नस्ब मशीन गन फायर की जद में आकर शहीद हुआ। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेमिसाल जुर्रत के एतराफ में उन्हें बाद शहादत मुल्क के आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर का हकदार करार दिया गया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 50वें यौम शहादत पर DGISPR ने उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा है कि निशान हैदर हासिल करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 में शकरगढ़ सेक्टर में जफरवाल के मकाम पर वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और भारत के 16 टैंकों को तबाह करके शुजात की नई दास्तान रकम की। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक बयान में कहा है कि नवंबर में जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी बरामदात में 33.5% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह बांग्लादेश की बरामदात में 31.3 और भारत की बरामदात में 26.5% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत ने कहा कि बरामदात में इजाफा हमारे बरामद कुनिंदगान की सख्त मेहनत का नतीजा है। उनकी कारकर्दगी को सराहा जाना ज़रूरी है। और नाज़रीन, हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बायस रवा माली साल के 5 माह के दौरान टैक्स वसूलियों की शरह बुलंद तरीन सतह पर रही और सिर्फ नवंबर के महीने में FPR ने 35% ज़्यादा वसूलियाँ की हैं। मजीद बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। टैक्स वसूलियों का दायरेकार बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है ताकि टैक्स से हासिल करदा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों पर खर्च किया जाए या दूसरे मानों में आवाम का पैसा बगैर करप्शन के आवाम पर खर्च हो। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 5 महीनों के दौरान FBR ने 37% रिकॉर्ड टैक्स महासिल जमा किया और सिर्फ नवंबर के महीने में 470 अरब रुपए के टैक्स महासिल जमा किए। पिछले अगर 5 महीने का मुआवजा करें तो उसमें भी हम 35% से ज़्यादा हमने जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है हमने उससे ज़्यादा अचीव किया है। अगर इन टैक्स वसूलियों का माली साल 2018 से लेकर नवंबर 2021 की टैक्स वसूलियों का जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में टैक्स वसूलियों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। माली साल 2018 के नवंबर के महीने में 282 अरब रुपए, माली साल 2019 के नवंबर के महीने में 335 अरब रुपए, जबकि 2020 नवंबर में 348 अरब रुपए की महसूलात रहीं। टैक्स महासिल में इजाफा इस बात की गमाजी कर रहा है कि कोरोना वायरस के वबा के बावजूद पाकिस्तान में माशी और कारोबारी सरगर्मियां अरूज पर हैं और टैक्स नेट का दायरा वसीतर हो रहा है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा तमगा अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के तलहा तालिब ने कांसी का तमगा जीता है। 67 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने कांसी का तमगा अपने नाम किया। अहम और अच्छी खबर, पाकिस्तान ने पहली मर्तबा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांसी का तमगा अपने नाम किया है। तलहा तालिब ने ये कांसी का तमगा जीता है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा पहला तमगा है जो पाकिस्तान के नाम रहा है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का ये एजाज जो पहली मर्तबा पाकिस्तान के नाम रहा, तलहा तालिब ने कांसी का तमगा जीत लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़ीशान कुयूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, बताइएगा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तमगा जो है वो अपने नाम कर लिया है। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा इस हवाले से। जी, ज़बरदस्त खबर, बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान में खेलों की जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ अरसे से खेलें परवान चढ़ती जा रही हैं और तलहा तालिब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने ताशकंद में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 67 किलोग्राम कैटेगरी में तलहा तालिब ने ये एजाज़ हासिल किया है। उन्होंने उनकी स्नैच कैटेगरी में 143 किलोग्राम वजन उठाया और तीसरी पोजीशन हासिल करते हुए कांसी का तमगा जीता है। सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तारीख में ये पहली मर्तबा पाकिस्तान के नाम तमगा हुआ है। इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी वेट लिफ्टर ये जो है वो ये एजाज़ हासिल नहीं कर सका, कोई तमगा नहीं ले सका। तलहा तालिब ने टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल की थी और सबकी तवज्जो का मरकज़ बने थे और अब उन्होंने जो है वो मेडल्स जीतना शुरू कर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले ओलंपिक्स में जो तलहा तालिब हैं वो पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। बिल्कुल जी, ये भी उम्मीद की जा रही है और आज भी यकीनन ये एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि कांसी का तमगा पहली मर्तबा पाकिस्तान के नाम रहा। तलहा तालिब ने ये तमगा जीता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान कयूम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على कराची की आवाम के लिए आज एक अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का दौरा किया है। इस मंसूबे से रोज़ाना 1,35,000 मुसाफिरों को जदीद तरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ज़मीर अब्बास से जानेंगे। ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया है। जी बिल्कुल, आज कराची शहर के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू हुआ है और ये मंसूबा जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू किया है, इसका इफ्तिताह आज उन्होंने किया है। इस मंसूबे को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट या सिर्फ ट्रांजिट मंसूबा अगर ना देखें तो इसका एक बहुत बड़ा एक पस मंज़र भी है कि ये सिर्फ एक वो पहली कड़ी है जिसके बाद डेवलप्ड कराची या जो मॉडर्न कराची का जो एक कॉन्सेप्ट है वो शुरू होगा। ग्रीन लाइन के बाद जो दीगर मंसूबे हैं जिसमें ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन, जो कि कराची के 4 मुख्तलिफ जगहों से होते हुए इस ग्रीन लाइन से जुड़ेंगे नुमाइश चौरंगी तक, और फिर नुमाइश चौरंगी से एक ये ग्रीन लाइन टावर तक मुकम्मल होगी। तो पूरे कराची में एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट जो ट्रांजिट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि आज वज़ीर आज़म ने भी अपनी स्पीच में कहा कि जो भी बड़े शहर हैं उनकी तरक्की का सबसे पहला कदम इसी मास ट्रांजिट सिस्टम से था। जब तक मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं होगा शहर की तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा
दरीना मंसूबा और मुतालबा था ये कि ऐसा ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा और दरीना मंसूबा जो है वो पूरा हो चुका है। आज से कराची के शहरी अच्छी बसों पर जो है वो सफ़र कर सकेंगे, जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। ज़मीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों में सेहत और दूसरी बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए 38 करोड़ 50 लाख डॉलर्स फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मनीला में इजलास के दौरान एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, मेंगोरा और पेशावर के लिए कर्ज की मंजूरी दी गई है। ये रकम उन शहरों में पीने के साफ पानी के ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सिस्टम और दीगर सहूलियात की तामीर पर खर्च की जाएगी, जिनसे 35 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे अखराजात ज़्यादा जबकि आमदन कम है, मुल्क को कर्ज़ों के दलदल से भी बाहर निकालना है। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। 2 लाख हमने नौजवानों को सर्टिफाई करना है। 100 के करीब ऐसे हाई टेक प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हम उनको स्किल फॉर ऑल के नाम से, यानी हुनर सब के लिए, वो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। 25,000 लोगों को सर्टिफाइड कर चुके हैं। मुझे अपने पाकिस्तान की यूथ के ऊपर फख्र है। हमारे वो स्टार्टअप्स 300 मिलियन डॉलर्स की सीड मनी, यानी कि अपनी स्टार्टअप्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुके हैं, जिनके पास आइडियाज़ थे, जिनके पास सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उनके पास सरमाया मौजूद नहीं था। वो इंटरनेशनली दुनिया की मार्केट से 300 मिलियन डॉलर्स आज की तारीख के अंदर जो है वो लेकर आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि दुनिया की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उन्हें नज़रअंदाज करके तरक्की की मनाजिल को तय नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में हमें एहसास है ख़वातीन का प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि ख़वातीन को समाज और काम की जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एहसास के तहत तमाम मंसूबों का 50% फ़ायदा ख़वातीन को हो रहा है। उनका कहना था कि स्कॉलरशिप्स भी 50% ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि हमारे यहाँ समाजी इक़्तिदार नज़रअंदाज होने से मुतअद्दिद मौशरती मसाइल ने जन्म लिया। हमारे माशरे में जराइम पर ताकतवर को क्लीन चिट जबकि कमज़ोर को कैद काटनी पड़ती है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कानून पर यकसा अमलदारी से जराइम में कमी लाई जा सकती है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले को हौसला शिकनी करनी चाहिए। कल नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह किया। ये वही ग्रीन लाइन थी जिसका पैसा रखा नहीं गया, जो रखा गया वो लूट के लंदन में जाके फ्लैट बना लिए। नारोवाल में आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ तो बनेगा। आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद कोई आईटी की बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई मैथमेटिक्स का बड़ा स्कूल बनेगा, तो कहीं उस टाइम एहसन इकबाल साहब वहाँ पर अलामती इफ्तिताह ना करें कि इसका ख्वाब भी मैंने सोचा था। मजहबी हम आहंगी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि आज मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में सानिया सियालकोट की मज़म्मत की गई और तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमा ने श्रीलंकन हाई कमीशन से कहा कि हम इस सानहे पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदनान मलिक को तमगा दिया है, हम सबको अदनान मलिक बनना है। आज का जुमा पूरे मुल्क के अंदर यौम मुजम्मत मनाया गया है। जो सानिया सियालकोट पे कंसेंसस पैदा हुआ है, ऐसा पहले हमने नहीं देखा। इफ एंड बट के बगैर लोग कह रहे हैं ये जुल्म हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा 2 दिन पहले कि मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा इकराम जो है वो गए और जाके उन्होंने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से कहा हम माफ़ी मांगने आए हैं, हम शर्मिंदा हैं। इमरान खान साहब ने अदनान को बुला के इसको तमगा शुजात दिया है। हम सबको अदनान मलिक बनना है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में दुनिया की 5 बुलंद तरीन चोटियां हैं जिनको सर करने के लिए हज़ारों कोहपेमा पाकिस्तान का हर साल रुख करते हैं। पहाड़ों की सैर व सियाहत के हवाले से इस साल खुसूसी तौर पर यह दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां नजर आते हैं। तफसील जानिए मोहम्मद यूनुस से।
ہر سال 11 دسمبر کو دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 23% رقبے پر پہاڑ ہیں۔ پاکستان بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش موجود ہیں۔ دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ گلگت بلتستان میں ان پہاڑوں میں کیٹو، براڈ پیک، گشر بروم 1، گشر بروم 2 اور ننگا پربت شامل ہیں۔ دنیا بھر کے کوہ پیما ان چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے گلگت بلتستان کو اور پورے پاکستان کو، ماؤنٹین کلائمبنگ کو، اسکیئنگ کو، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ پوٹینشیل ہے وہاں پہ۔ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، ایون ونٹر ٹورزم بھی۔ اس دن کے حوالے سے اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پہاڑوں کے نازک ماحولیاتی نظام کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے کہا موسمیاتی تبدیلی پہاڑی ماحولیاتی نظام کو متاثر کر رہی ہے، جس سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ گلیشیل میلٹ کے بارے میں سب آگاہ ہیں، اس کے جو خطرات ہیں ان سے بھی آگاہی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے سسٹینیبل ماؤنٹین ٹورزم کی، جس کے تحت ہم صرف ٹورزم کو ہی نہیں، ایکو ٹورزم کو، کنزرویشن کو اور گلوف کے ایونٹس کی جو وجہ سے جو تباہی آتی ہے اس کو ایڈریس اور اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ ایونٹ منعقد کیا تھا۔ انہوں نے پائیدار ترقی کو یقینی بنانے اور قدرتی آفات سے بچنے کے لیے فطرت اور ماحولیات کے ساتھ ہم آہنگ انسانی تعلقات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ باصلاحیت ملکی نوجوانوں کا ایک اور کارنامہ، پلاسٹک ویسٹ کی ری سائیکلنگ کے لیے 2 مشینیں بنا لیں۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ استعمال کے بعد پھینک دیا جانے والا پلاسٹک ملک میں ماحول کی گندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اسی لیے حکومت پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جس کی ایک مثال ان طلبہ کی ہے جنہوں نے پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے لیے 3D پرنٹنگ مشین بنائی ہے۔ 2 مشینز مینوفیکچر کی ہیں۔ سب سے پہلی مشین ایک شریڈر ہے، جس میں پرانے پلاسٹک کی بوتلیں اس جگہ سے ڈالی جاتی ہیں اور وہ ان کو کرش کر کے، یعنی ان کے چھوٹے سے پیسز بنا کے ان کو نیچے سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسٹروڈر کی مشین ہے اور اس میں شریڈڈ پلاسٹک ادھر سے ان کیا جاتا ہے اور اس میں ہیٹرز اور بیرل لگا ہوا ہے۔ یہ شریڈڈ پلاسٹک اس بیرل کے اندر میلٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ڈائی سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ پلاسٹک ری سائیکل کرنے والی یہ مشین نہ صرف مکمل طور پر ماحول دوست ہے، بلکہ اس کا استعمال کاروباری لاگت میں کمی کا بھی سبب بنے گا۔ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہ سارا ایکو فرینڈلی ہے، ایک سولر پاور کے اوپر جو ہے ہم اس کو ٹوٹلی چلا سکتے ہیں۔ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، جن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ملکی ترقی کی منازل تیزی سے طے کی جا سکتی ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور پی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔